Welcome back to the weekly webinar of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Again, here we go. Let's start the webinar session. So I just wanted a confirmation that am I audible? Yes. Yes. Thank you so much. All right. So let us welcome the speakers here. Let's see the speakers are ready or no. Miss Manali, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Hi, Miss Manali. Good evening. Hearty welcome to the session. Thank you. And Mrs. Anaga, are you here? Yes, I'm here. Good evening. Hi, Mrs. Anaga. Good evening. Thank you for joining us. So, and the resource person, Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, Deepa, I'm here. Good evening. Thank you for joining us, Mr. Bhagwati. Hearty good evening to you, and thank you for your time over here. So, altogether, the speakers of this evening are ready. So now let us just move ahead and go to the webinar cum training session, and a special welcome to all the spectators here, and now let us move to the introduction part of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Firstly, let us see what are the softwares we are into and what we do with those softwares. So basically we are into Tally Prime, an accounting software, and we are into SAP Business One, a key for every business solutions, and we are into Skill India, a government project which is specifically concerned for the education and employment of students, and we are into Bitrix CRM, a customer relationship management software which is concerned to the complete system management of an organization, and we are into Acronix, a backup software which is highly demanded in this pandemic due to lockdown and adapting the scenario of sit anywhere and everywhere and just enjoy your work. Well, these are the softwares which we are into, and let's see now what we do with all these softwares. Basically, we are into sales and after sales, we are into support, we are into solutions, we are into customizations, and we are into advisory. This is what we do. And what is this advisory? Well, all these things are a little familiar, the support, solution, customization. But what is this advisory? When you talk about what is this advisory, you can see advisory is something like if an organization is interrupted due to some scenario, or an organization is distracted due to certain circumstances. At that moment, we just step ahead and suggest them certain softwares and suggest them the guidelines to just uplift the scenario, the interrupted situation, and just smoothen the working of that particular organization. This is what we do. Just by giving an example, I can say now in this due to this pandemic scenario, the lockdown impact has just closed the offices. So at this moment there are many organizations which took a decision to just close their businesses, and many other scenarios. So in this scenario, we are here to support completely how the work from home setup can be set with the software, without software, how the system can be managed. All these things we are in the scenario in all these situations. Well, this is what we do exactly, and I must say we have a couple of offers for this week, so it is really going to be very productive as per the scenario and situation. So request you to stay tuned till the last minute of this call, because there are many things which is going to happen in this particular call. Okay, and apart from this, today's topic is e-invoicing with Tally Prime. Wow, the Tally ERP 9 to Tally Prime itself has given really a very flexibility for the users as well as for the organization. So now here we will be watching what is this e-invoicing, how this e-invoicing will be done on Tally Prime. Before moving ahead to this particular session, let me just give few instructions onto the webinar. If you have any doubts or any questions, request you to please update in the comment section. We will be checking out the comment section, and we will be updating that questions or doubts through a YouTube channel, or we will be connecting you personally, or we will be updating onto this call also. The first thing. And the second thing is this call is getting recorded.
and this call will be forwarded to the YouTube channel. If you have you added in between, or if you didn't understand any of the words over here or any of the scenario over here, you can go and watch our YouTube channel. By a couple of days we will be updating all the details. You can just understand in a very clear way, and even you can provide training to your team as well as your colleagues. So this is what the instructions, and beyond this I must say you can check our comment session. The details has been forwarded, that is the contact number, the website details, the email ID, and our YouTube channel for subscription. So for subscribing, so if you wanted to subscribe, do click now itself, because once this call gets disconnected, you will not be able to access the comment box. So now itself you can click on to the YouTube channel, and you can take the contact details, which will be very helpful to set up all the scenarios over here. So now let us go to the webinar, that is on e-invoicing topic. So Mrs. Anaga. Yes. Yes, it's over to you, Mrs. Anaga, completely. Request you to introduce yourself and please proceed ahead. Okay? Okay, thank you, Deepa. Hello everyone, good evening. Myself, Mrs. Anaga Naik. I'm here to present you the webinar session, the most important topic, that is e-invoicing with Tally Prime. So just a minute, I will just share my screen, because first I'll be explaining you the theoretical. Just a minute. So whether my screen is visible? Yes, ma'am, it's loading. Yes, it's visible. Now it's visible. Okay. So today's most topic important is e-invoicing with Tally Prime. So Tally Prime में हम कैसे क्या applicable है to all the process started, that is 1st October 2020, and the second criteria था 100 CR, which was started applicable from 1st Jan 2020, and the third जो applicable हुआ है, that is from 1st April 2021, जो it is for 50 CR. Okay. Second is reporting of the invoice on the GST portal. तो ये present system में हम क्या करते हैं, JSON file upload करते हैं, but in e-invoicing session we have to fill some mandatory parameters, जिससे ये automatically GST returns में वो upload हो जाएगा. And the third step is main important is invoice reference number. So ये invoice number that is known as IRN. So present invoice में हम क्या मेंटेन करें, sequentially invoice number होता है, IRN फॉर्मेट में नहीं होता. पर इनवॉइसिंग में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, दैट इज यूनिक कैरेक्टर्स, दैट इज 64 कैरेक्टर्स जो IRN आपका जनरेट होता है. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इज QR कोड. QR कोड अभी जो हम लोग करेंटली इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें हम कहीं पे भी वैलिडेशन नहीं है QR कोड का, बट for e-invoicing it is mandatory QR code validate होगा by the IRP. And the fourth and the most is amendments. So अभी तक जो हम प्रेजेंटली इनवॉइसिंग में अमेंडमेंट्स करते थे वो ओनली GST पोर्टल में होते थे, बट इन द इनवॉइसिंग सेशन ये कैंसिलेशन प्रोसेस आल्सो डन विद इन द 24 आवर्स ऑन द IRP via the GST portal. So just moving to the next slide. So यहाँ पे है इनवॉइस डिटेल्स. जैसे अभी हम जो टैली से सेल्स इनवॉइस प्रिंट निकलता है तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि हमने कौन से पार्टी को सेल किया हुआ है, उसका डिस्पैच नंबर, उसका सेलर डिटेल्स होगा, कंसाइनी डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, आइटम एंड इनवॉइस कंप्लीट डिटेल्स अलॉन्ग विद इस इनवॉइस नंबर, अमाउंट एंड अदर चार्जेस, एक्सपोर्ट डिटेल्स, और अगर ईबे बिल रहेगा तो ईबे डिटेल्स के साथ. पर इन केस ऑफ इनवॉइसिंग आप यहाँ पे इमेज में व्यू कर सकते हो कि आपको एक टॉप पार्ट में एक QR कोड दिख रहा है. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी जो जनरेट होगा QR कोड से आपका इनवॉइस जनरेट होगा. तो दिस इज मैंडेटरी फॉर द इनवॉइसिंग प्रोसेस. नेक्स्ट स्लाइड. So what is the preparations for the invoicing process? तो सबसे पहले टैक्स पेयर क्या करेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा,
एंड द सेकेंड, जैसे ही हम लोग का कम्युनिकेशन होगा तो वी आर गेटिंग अ लॉगिन डिटेल्स टू द IRP पोर्टल. तो हमें लॉगिन डिटेल्स, तो हमें पर्टिकुलर जो भी डिटेल्स है, नेसेसरी डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो हमें प्रॉपरली फिलअप करनी है, जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो. हमें स्पेसिफिक वहाँ पे GSP सिलेक्ट करना होगा, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, जैसे अभी 1 अप्रैल है, तो वहाँ से हम इजीली ई-इनवॉइसिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. So this is the main preparations we have to do prior the invoicing process. And the major thing is the documents required for to the e-invoice system, that is B2B and B2G tax invoices, export invoices, revised charges, credit note and debit note. ये सारे details जो है documents हमें ये process में update करनी होगी, जिससे हमें e-invoicing process हम easily start कर सकते हैं. So that's it from mine, and now we'll be moving for the practical session. So it's over to you, Manali. See, there is some network issue, so the person who's going to give a demo is going to take a little space. Mrs. Anaga, you can share your screen. Yeah, sure. Yeah, so let me just take out the space here. That is like, as I said, we are also into HR services and digital marketing services. So that is nothing but like a complete system management of an organization really matters in this pandemic scenario specifically. Now everything has been focused onto the pandemic scenario itself, because as we are not aware that what is going to happen in future, whether the lockdown, all these stuff is going to just end up here or it is going to extend, whatever, but it is every business owner's responsibility or every dedicated person's responsibility that you have to take the right advantage and use of the softwares, the system, the technology. So altogetherly मैं यही यहाँ पे बताऊंगी कि हम सबको right like time पे right चीजों को choose करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वैसे अगर हम देखेंगे तो इसीलिए राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस पास्ट अराउंड 10 years this is like we were into HR services and digital marketing services, but as pandemic like scenario के वजह से we just stepped a little like focused onto these two services also. So all you need to do is you are supposed to just connect us if you wanted to manage your system, or else if you wanted to manage all the digital platform, digital social media platforms, that is like an account manager will be given to you from our organization. तो वो आपके पूरे सोशल मीडिया लाइक साइट्स जो है जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और भी लाइक अदर साइट्स ऑल्सो, ये सारी साइट्स को आपके कंपनी के बिहाफ में हमारे कोई अकाउंट मैनेजर विल बी लाइक हैंडलिंग ऑल दीज साइट्स. A continuous updation will be going on, जैसे कि like आपके कोई नए ऑफर्स या फिर आपके कोई like नया प्लान या फिर आपके कोई नई प्रोडक्ट, everything will be published into the social media and you'll be getting like attracted and you'll be getting a good reach onto the customers. So this is what like social media, and beyond this if you talk about like HR services, a complete system management from like recruitment, from training and development, from management, employee engagement. In this scenario it really matters a lot. Employee को bond करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The staff's happiness really matters a lot. So it is very important that you are supposed to like see all these things. So अगर आपको कोई भी like questions है, कोई भी doubts है इन चीजों के ऊपर, so please you connect us. I think Miss Manali is back. Manali, are you back? Yes, ma'am. Hi Manali. Yeah, Manali, it's over to you now, so you can share your screen. Yes, ma'am. Thank you, Anaga ma'am. Nice explanation given by you. So hello everyone, good evening all. This is Manali here, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So अभी तक हम लोग ने theoretically सब समझ लिया, like e-invoice exactly system क्या है, ई-इनवॉइस हम लोग क्यों जनरेट करने वाले हैं, या फिर ई-इनवॉइस हमें कब से एप्लीकेबल हुआ है, या फिर आगे कब एप्लीकेबल होने वाला है और किसे एप्लीकेबल होने वाला है. इवन ई-इनवॉइस में कौन सी चीज़ें वहाँ पे हमें
लगने वाली है या फिर कौन सी चीजें मैंडेटरी है, वो सारे डिटेल्स अभी हम लोग ने थियोरेटिकली देख लिया। बट अभी टाइम है कि हमें प्राइम से ई इनवॉइस कैसे इम्प्लीमेंट करना है या फिर प्राइम से हम लोग उसे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। सो वेट, आई विल शेयर माय स्क्रीन हियर। Just a moment. It's visible? Yeah, Manali, it's visible. ओके, थैंक यू सर। सो अभी जैसे हम लोग ने देखा कि ई इनवॉइस हमें 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, जिनका भी टर्नओवर 50 CR होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे मेन चीज आपका क्या रहेगा, आप जब भी पोर्टल पे या फिर ई इनवॉइस के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर आपको ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन अवेलेबल होता है। एक सर्टेन यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मिलता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो पोर्टल के थ्रू। सो जैसे हमारा ई वे बिल का पोर्टल है या फिर अपना GST पोर्टल है, लाइक सेम जब भी आप ई इनवॉइस को रजिस्टर करोगे उस टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन में ID पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप आपका ई इनवॉइस पोर्टल लॉगिन करोगे। जैसे ही आप आपका पोर्टल लॉगिन करते हो विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो नेक्स्ट उसमें हमें जनरेट करना है API यूजर। सो API यूजर हम लोग क्यों जनरेट करेंगे, API यूजर का मीनिंग क्या है या फिर हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं उसे। लाइक जब भी आप टैली में से एंट्री करोगे और एंट्री जब भी एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी टैली में, तो वहाँ पे एक सर्टन आपको ई इनवॉइस जनरेशन के लिए ऑप्शन आएगा। तो उधर एक आपको लॉगिन आईडी पूछने वाला है। लाइक अभी हम लोग जो है GSP है, यानी कि हम लोग ई इनवॉइस के लिए एक पर्टिकुलर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए ही API हमें जनरेट करना कंपलसरी रहेगा। सो जैसे ही आप आपका जो ई इनवॉइस का पोर्टल लॉगिन करते हो तो लाइक ये कुछ स्क्रीन आपको वहाँ पे शो हो जाएगी और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें से आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो यूजर क्रेडेंशियल का ऑप्शन दिया है उसके अंदर आपको जाना है क्रिएट API यूजर में। जैसे ही आप क्रिएट API यूजर में क्लिक करते हो वैसे आपको नीचे फॉलोइंग जो स्क्रीन शो हो रही है API रजिस्ट्रेशन की, वो ओपन हो जाएगी। तो API रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे थ्रू GSP सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर GSP रहेगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड का स्क्रीन शो हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना होगा और यही आईडी एंड पासवर्ड हम लोग टैली में यूज करेंगे। सो ये था कम्प्लीटली API यूजर क्रिएशन का प्रोसेस जो हम लोग ई इनवॉइस के पोर्टल से करेंगे। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग देखेंगे कि टैली से हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है ई इनवॉइस का। सो वेट अ मोमेंट, आई विल शेयर माय अनदर स्क्रीन। इज इट विजिबल? ओके सर। सो अभी जैसे टैली प्राइम में हम लोग कंपनी जैसे ही ऑन करते हैं तो कंपनी ऑन करने के बाद ई इनवॉइस का फर्स्ट सेटिंग हमें करना है। तो वो सेटिंग कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो टॉप मेन्यू बार पे हमें प्राइम ने एक ऑप्शन दिया दैट इज कंपनी। जैसे ही हम लोग ये कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद कंपनी बटन में हमें एक ऑप्शन दिया है दैट इज F11 फीचर। जैसे ही हम लोग F11 फीचर्स में जाएंगे तो अंडर टैक्सेशन अपना GST का ऑप्शन जो है वो एनेबल रहेगा। सो उसके यहाँ पे हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है दैट इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल। सो ये ऑप्शन को हमें ऑन करना होगा। सो अभी मैं इसे यस कर देती हूँ। यस करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको एप्लीकेबल फ्रॉम का डेट पूछेगा ताकि आपको कौन सी डेट से एप्लीकेबल करना है। तो अभी आने वाला जो अपना ई इनवॉइसिंग है वो 1 अप्रैल से जनरेट होने वाला है फॉर 50 CR जिनका है उनके लिए। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे 1/4/2021। देन नेक्स्ट आएगा आपका बिल फ्रॉम प्लेस, यानी कि आपका बिल कौन सी प्लेस से बन रहा है वो प्लेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है मुंबई। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट, 3 डेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उन्होंने कैच कर लिया है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, लाइक आप जो ई इनवॉइस है वो सिंगल ई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो और बल्क में भी जनरेट कर सकते हो। लाइक जब भी आप एंट्री पर्टिकुलर क्रिएट कर रहे हो, एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद उसी टाइम भी अगर आपको जनरेट करना है पे जनरेट करते हो, बट इन केस आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर ई इनवॉइस जो है मैं बाद में जनरेट करूंगा या फिर पर्टिकुलर डे में जितने मेरे इनवॉइस बनाए हैं उसका मैं एक बार लास्ट में ही उसका इनवॉइस जनरेट करूंगा, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो।
तो यह 3 डेज जो हमें यहाँ पे दिया है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप इनवॉइस या फिर वो पर्टिकुलर एंटर कर रहे हो, उसके बाद से विद इन 3 डेज आप वो पर्टिकुलर इनवॉइस को कभी भी पोर्टल पे जनरेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है सेंड ई वे बिल विथ ई इनवॉइस। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? ई वे बिल तो हम लोग प्रीवियसली पहले से यूज करते आ रहे हैं, ERP से भी हम लोग ई वे बिल जनरेट कर रहे थे एंड प्राइम से भी जनरेट करते आ रहे हैं। बट इसमें अभी न्यू फंक्शन क्या है? प्राइम में हमें न्यू फैसिलिटी क्या प्रोवाइड किया है? अगर जैसे अपना ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड हो रहा है, तो उसी के साथ साथ अभी आपका जो ई वे बिल है वो भी ऑटोमेटिकली अपलोड होने वाला है। सो आई थिंक यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर जो मैनुअल वर्क है वो बच रहा है, उसके साथ साथ आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो भी बच रहा है, यानी कि ई इनवॉइस के साथ साथ आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पे अपलोड होने वाला है। तो वो कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। सो ये ऑप्शन को हम लोग ऑन कर देते हैं, देन ये स्क्रीन हम लोग सेव करेंगे। ये हो गया अपना ई इनवॉइस का कॉन्फ़िगरेशन। ई इनवॉइस का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अभी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आएंगे अपना जो एंट्री लेवल है वहाँ पे। सो फर्स्ट हम लोग जाएंगे वाउचर्स में, और मैं अभी एक सेल एंट्री पास करती हूँ 1 अप्रैल की। सो पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके मैंडेटरी डिटेल्स रहेंगे, डिस्पैच रिगार्डिंग, ऑर्डर रिगार्डिंग, वो डिटेल्स फिलअप करेंगे हम लोग। देन सेल अकाउंट, फिर हमारा जो स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग एंट्री यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज प्रोवाइड GST, ई वे बिल एंड ई इनवॉइस डिटेल्स। ये ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। फर्स्ट आप यस करोगे तो आपको मेन स्क्रीन यहाँ पे ई वे बिल के डिटेल्स के रिगार्डिंग शो करेंगी, यानी कि ई वे बिल के रिगार्डिंग जो भी आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मैंडेटरी डिटेल्स हमें लगते हैं, वो डिटेल्स फर्स्ट इससे फिलअप करोगे। ये स्क्रीन फिलअप करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पे शो होगा ई इनवॉइस डिटेल्स। सो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं? दैट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट एंड IRN। ये जो 3 चीजें हैं ये ई इनवॉइस में हमें मैंडेटरी रहेगी, और ये चीजें कभी फिलअप होके आएंगी जब भी आप आपका एंट्री सेव करके इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद वो सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप होके आएंगे। तो ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट है ये हम लोग फिलहाल ब्लैंक रखेंगे। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लेस ऑफ पार्टी। बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस यहाँ पे आपको कंपलसरी एंटर करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बिल टू प्लेस यहाँ पे मुंबई डाल रही हूँ एंड शिप टू प्लेस भी यहाँ पे मैं मुंबई डाल रही हूँ। विद इन मुंबई में मेरा मटेरियल जो है वो सेल कर रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग ये इनवॉइस के डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और एंट्री जब भी हम लोग सेव करेंगे, तो एंट्री सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे पॉपअप देगा, दैट इज डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी आप इजीली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। सो ये प्रोसेस था टैली में से। इसके आगे भी प्रोसेस अपना टैली से होगा, बट अभी मैं आपको PPT के थ्रू दिखाने वाली हूँ। तो जस्ट आई विल शेयर माय अनदर स्क्रीन हियर। सो ये पॉपअप हमें शो हो रहा था जैसे ही हम लोग ने एंट्री वहाँ पे एक्सेप्ट की, तो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेट करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यस करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का एक पॉपअप देगा, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड डालना है हमें? जो हम लोग ने स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोसेस बताया था API यूजर का, जो API हम लोग ने जनरेट किया है या क्रिएट किया है, उसके साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो वो API यूजर का लॉगिन है वो हमें यहाँ पे यूज होने वाला है। सो जैसे ही हम लोग ID पासवर्ड एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपका जो ई इनवॉइस है वो इजीली सक्सेसफुली पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, साथ में ई वे बिल भी आपका पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही हमारा इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड हो जाता है तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमें कैसे दिखाई देगा। सो प्रिंट ऑप्शन के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं तो नेक्स्ट ये रहेगा आपका कंप्लीटली ई इनवॉइस का फॉर्मेट। जैसे हमारा टैक्स इनवॉइस प्रिंट होता है वैसे है, लेकिन उसमें जैसे कि हमारा ई इनवॉइस में जो मैंडेटरी चीज है दैट इज स्कैन किया हुआ QR कोड, IRN नंबर जैसे अनघा ने बताया कि विच कंटेन 64 कैरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारी चीजें एक साथ आपको एक ही इनवॉइस के ऊपर ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिल रही है। साथ में आपका जो ई वे बिल नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो आपका जो ई वे बिल है वो भी ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही आपका टाइम सेव हो रहा है और जो मैनुअल वर्क करना है वो बहुत बच रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस अभी तक था वो सिंगल एंट्री के लिए था। इन केस अगर आप चाहते हो कि मुझे बल्क में जनरेट करना है, सारे इनवॉइसेस में एक साथ एंटर करूंगा और बाद में मेरा जो इनवॉइस है वो मैं जनरेट करूंगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो टैली प्राइम में
एक सर्टन टॉप मेन्यू बार में एक ऑप्शन दिया है दैट इज एक्सचेंज। जैसे ही आप एक्सचेंज बटन पे क्लिक करते हो वहाँ पे आपको एक सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ई इनवॉइसिंग के ऊपर हम लोग क्लिक करने के बाद एक टोटल लिस्ट आपको जनरेट हुई मिल रही है यहाँ पे, यानी कि वो पर्टिकुलर डे में आपने कितने सारे इनवॉइसेस जनरेट किए हैं उसका कंप्लीट एक लिस्ट आपको अवेलेबल हो रहा है। और इसमें से आपको कौन से इनवॉइसेस साथ में बल्क में जनरेट करने हैं उसे आप 1 by 1 सिलेक्ट करके इजीली पोर्टल पे सेंड कर सकते हो। लाइक अभी मैंने यहाँ पे सारे इनवॉइसेस एट अ टाइम सिलेक्ट कर लिया है और अभी इसे मैं सेंड करूंगी। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा दैट इज टोटल 15 इनवॉइसेस आप एट अ टाइम बल्क में जनरेट कर रहे हो और उसमें से कैंसिल इनवॉइसेस भी कितने हैं उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सारे इनवॉइसेस पोर्टल पे एट अ टाइम बल्क में अपलोड हो जाएंगे। तो ये था हमारा बल्क इनवॉइस जनरेशन। नेक्स्ट, जैसे अगर कोई हम लोग एंट्रीज बनाते हैं या फिर पर्टिकुलर कुछ चीज मेंटेन करते हैं तो उसका एक सर्टन रिपोर्ट भी होना चाहिए। लाइक जीएसटी के हमारे कैसे रिपोर्ट्स है वैसे सेम ई इनवॉइस का भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे ई वे बिल में ई इनवॉइस में भी अवेलेबल रहेगा। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा? तो मेन स्क्रीन में हमारा टैली प्राइम ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है दैट इज गो टू। जैसे ही आप गो टू बटन पे क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे एंटर करना है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस एंटर करने के बाद कम्प्लीटली ई इनवॉइस का रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके हेल्प के थ्रू जो भी मतलब ई इनवॉइस के रिपोर्ट है यानी कि आपने ओवरऑल कितने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं या फिर कौन सा इनवॉइस मेरा कैंसिल हुआ है या फिर जब ये एंट्री कर रहा है उस टाइम पे कुछ एरर शो कर रहा है, ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन है उसका कंप्लीट रिपोर्ट आपको यहाँ पे ई इनवॉइस के रिपोर्ट में मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल IRN कैंसिलेशन कितने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर एंट्री पास की है, अगर बाद में आपको पता चल रहा है कि वो एंट्री में मुझे कुछ करेक्शन करने हैं, अल्टरेशन करने हैं और उसका ई इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट हो चुका है तो विद इन 24 आवर्स में वो IRN आप कैंसिल कर सकते हो और बाद में न्यू फ्रेश एंट्री पास करके न्यू IRN जनरेट कर सकते हो। यानी कि IRN कैंसिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे प्राइम में अवेलेबल है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ IRN कितने जनरेट हुए हैं अभी तक आपके, वो मंथली डेली वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड। इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइक सपोज कोई एंट्री अपनी मिसमैच में चली गई है या फिर एक पर्टिकुलर मैंडेटरी फंक्शन या फिर मैंडेटरी कॉलम आपने फिलअप नहीं किया है, ऐसी कौन सी एंट्री है तो उसका डिटेल आपको ये रिपोर्ट में अवेलेबल होता है। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्टन जितने भी इनवॉइसेस आपके कैंसिल हुए हैं या फिर पर्टिकुलर डिटेल्स आपने फिलअप नहीं किए हैं वो सारे डिटेल्स या फिर वो सारे इनवॉइसेस आपको एक ही पेज में मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर इनवॉइस कैंसिल होने के पीछे का रीजन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे दैट इज बायर एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड। सो पर्टिकुलर सो एंड सो एंट्री में हम लोग ने बायर का एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया है जिसके कारण वो ई इनवॉइस उसका जनरेट नहीं कर सके हम लोग। सो आई थिंक ये रीजन चेक करके, ये रीजन को फाइंड आउट करके आप फटाक से उसे रेक्टिफाई करके न्यू ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी और एक आपका टाइम बच रहा है। देन नेक्स्ट, रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम। अभी जो हम लोग ने देखा वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने फिलअप नहीं किए थे, इसके कारण अपना ई इनवॉइस वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। अभी रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम क्या है? यानी कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है फिर भी आपका इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट होके आया है, तो वो क्यों, वो कैसे पता चलेगा हमें क्यों हमारा इनवॉइस रिजेक्ट हुआ है? तो जैसे ही आप ये बकेट लिस्ट पे क्लिक करोगे दैट इज रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, तो आपको वो पर्टिकुलर एंट्री का रीजन पता चलेगा। रिजेक्शन का रीजन आपको यहाँ पे मालूम होगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो HSN कोड है वो इनवैलिड था, इसके लिए मेरा जो पर्टिकुलर इनवॉइस है वो रिजेक्ट होके आया है। या फिर डुप्लीकेट IRN हुआ है, इसके लिए मेरा वो ई इनवॉइस रिजेक्ट होके मुझे वापस आया है। तो आई थिंक ये फाइंड आउट करके आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो वो जो सो एंड सो एरर रहेंगे और नेक्स्ट इनवॉइस आप इजीली उसे क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है अपना ई इनवॉइस के रिगार्डिंग जो भी हमारे रिपोर्टिंग है उसमें हमारे कंप्लीटली IRN का एक रजिस्टर मिलता है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है F5 IRN रजिस्टर। जैसे ही आप IRN रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो तो एक कंप्लीट IRN का रजिस्टर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यानी कि पर्टिकुलर मंथ में आपने कितने IRN जनरेट किए हैं उसका डिटेल्स आपको मिलता है अलॉन्ग विद देयर स्टेटस। यानी कि पर्टिकुलर वो IRN का स्टेटस क्या है, मींस वो कैंसिल हुआ है या फिर अनसर्टन ट्रांजेक्शन में कितने हैं मेरे IRN, तो वो सारे डिटेल व्यू आपको यहाँ पे प्राइम में अवेलेबल है। So I think with the help of Tally Prime you can easily generate your e-invoice and यहाँ पे completely आपका टाइम जो है वो बहुत सेव हो रहा है। इवन अपना मैनुअल वर्क जो है ई वे बिल के रिलेटेड वो भी यहाँ पे सेव हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि सबको अपडेट करके इसका बेनिफिट लेना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।
Thank you, Manali. That was really very important thing. हर एक organization में, whether it is a director or whether it is an individual, हम यही सोचते हैं कि कैसे हम time save करें, कैसे हम चीजों को flexible करें. So we have to say Tally Prime has really made us our life very flexible with this feature. So all right, तो अभी हम देखते हैं resource person की तरफ से एक overview on to today's topic. So hi Mr. Bhagwati. Hi Deepa. Yes, we had seen now Anaga के presentation हमने देखा है, and we saw like Manali's discussion as well as the live demo. So now it's over to you, Mr. Bhagwati, कि ये e-invoicing कितने life को flexible करता है, कितने time save करता है, and how that this just makes us tension free. So ये सारी चीजें और इस topic के ऊपर एक छोटी सी over recap आपकी तरफ से. Yes, sure. So, hi, good evening, everyone. I'm Bhagwati here from Lakshmi Solutions Private Limited. So, in terms of the e-invoicing, this very essential topics, and everybody in the terms of that they have a 50 crore transactions here. Definitely, they have a need mandatory. This is mandatory for the everyone, and yes, in terms of the any of the now digital world is there, so everybody have to use transactions in the through the software. So in terms of the Tally, they are a leader of the market, and everybody, many of the organizations, they are in the 50 crores transactions under the 50 and so they have need a mandatory, they have need to use the e-invoicing that is applicable from the 1st April 2021. So in terms of this scenario, डे टू डे जो कंप्लाइंस जो हो रहे हैं, डे टू डे जो कंप्लाइंसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस जो आ रहे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द Tally ERP system, Tally Prime system. All things is covered. Now in terms of the Tally Prime, now Tally Prime is always sync with the Tally GSTN portals directly. मतलब they are interacting with GSTN directly. So this is a new feature. This is a technology change in the Tally Prime, Tally ERP to Tally Prime. So upcoming time there is a lot of things will upcoming. So you will in future you will check that कि वो भी चीजें मिलेगी. But in this time in terms of the e-invoicing, this is a mandatory part, and every 50 crore transactions people have need, and they are struggling. They have 100 crore and 500 crore earlier. They struggle in that. So in this scenario, it's a good thing कि now this is available in the Tally Prime, and everybody can use these features in the Tally Prime. And this is a very simple. आपके जो काम करने के जो तरीके हैं, whatever you are doing earlier, same way you are doing everything. Just एक single click है. First earlier you are doing the e-way bill through the manual filing system, but now in terms e-way bill and e-invoicing both are in the simple way, and both are in the single click buttons. You can enable the buttons, yes button, and that will automatically sync with your GSTN portals. And if you want to do end of the day, that is also available कि आप पूरे दिन के एक बार इनवॉइस बना लो, पूरे एक साथ अपलोड कर दो, ई-वे बिल के साथ पैरेलल जनरेट हो जा रहा है. So this is a very good features, and there is a lot of report in terms of the e-invoicing, and you can check over there, and you have a more visibility and clarity in your Tally Prime system. And if anything is rejection and any other things is there, if you have any mistake done by you, so all things is covered in the Tally Prime system. So it's a very easy to use, hassle free, fearless. और इससे सबसे बड़ी चीज़ जो आज की डेट में गवर्नमेंट कंप्लाइंस में जो पेनल्टीज एंड जो चीज़ें कंप्लाइंस जो हो रहे हैं, तो यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन सेव योर मनी. So people, I think you can use very smoothly. You can take the support from our side. We are available for your supports. You can connect with your accounts manager. They are connecting with you through the Rajlakshmi Solutions. And you can also engage with me directly. You can call on my numbers. My number is also visible on your chat board. And
for future, for example, if you want to see that videos that already we show you in this session, so that will also upload upcoming time in our YouTube channel. So you can subscribe our YouTube channel, you will get a lot of advantage, because every time we are updating lot of training session videos and lot of materials that is useful for you. So this it from my side, Deepa. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Bhagwati. It was really a productive information onto this. So altogetherly, we had come to the end of the session because most of the things has been covered here. As I said, अगर आपको कोई questions है तो request you to please update it in the comment box. हम उस question के ऊपर जरूर हम discuss करेंगे. और उसके beyond अगर आप directly हमसे बात करना चाहते हैं तो request you to please connect onto the number which has been updated in the comment box, and do subscribe our channel, our YouTube channel link वहाँ पे हमने दिया है. So do subscribe our channel and follow the movements of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Well, beyond this, मैंने आपको पहले बताया था, we do have couple of offers which has been come around. So regarding offers, मैं अब यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि we do have different offers as per the sector, as per your organization structure, as per your size of organization. So altogetherly, if you really wanted to know the offer, request you to do connect us, and specifically इस scenario, इस situation के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो there are again some kind of disturbance or distraction happening in the minds of people कि what is going to happen next, this pandemic is going to be extended much more और क्या होगा, ऐसे सबके mind में एक सवाल तो जरूर है. तो उस सवाल के लिए solution तो यही है कि let us come out of that and make ourselves such a flexible way, कुछ भी हो जाए, nothing should matter to our business. This really matters. So अगर वो mindset आप में भी है तो please connect us. We are here to just explain you what really happens when you just convert yourself in a flexible way with the help of software, with the help of decisions, with the help of suggestions, with the help of advisory. Altogetherly, इसी पॉइंट पे कनेक्ट करते हुए मैं ये जरूर बताऊंगी कि नेक्स्ट वीक we will be having a webinar onto the highly demanded topic that is regarding to backup. Okay, so अपने data को आप कैसे backup कर सकते हो, and what are the different options, and what are the different offers which is going to be there in that. यही हम next week का webinar करने वाले हैं. This is pre-discussed topic, and this was highly demanded topic as of now. Customers इस पे ज़्यादा focus कर रहे हैं ताकि they can secure their data and they can sit anywhere and work without any kind of interruption in their business. So that's it for today. I hope we have come to an end. So thank you so much, Ms. Manali, and thank you so much, Mrs. Anaga. You really did a great job here. And coming back to Mr. Bhagwati, thank you so much. It was a really pleasure having your add-ons onto the topic, and we have covered most of the points here. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, just watch into certain things, that is we are a complete solution provider, as well as we are into most of the sectors, a complete organization management system, everything to make a business successful. So do connect us and understand the scenarios and situation. Thank you everyone. Stay connected, stay tuned. See you soon in the next webinar. Take care. Bye.